ایک ایسا ملک جو کبھی افریقہ کا مستقبل کہلاتا تھا، اسے افریقہ کا اناج گھر بھی کہا جاتا تھا، جس کی زمینیں دریائے نیل کے پانی سے سیراب ہوتی تھیں، جہاں دنیا کا سب سے بڑا زرعی منصوبہ جزیرہ پروجیکٹ قائم تھا، جو سونے کے ذخائر میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک اور مویشیوں کی تعداد میں 5ویں درجے پر تھا۔ مگر آج وہی ملک خاک و خون، قحط اور خانہ جنگی کی تصویر بنا ہوا ہے، اور یہ ملک ہے سوڈان۔ آخر قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک آج تباہی کے دہانے پر کیوں کھڑا ہے؟ اقوام متحدہ کے مطابق 1 کروڑ سے زائد باشندے شدید غذائی قلت کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے لوگ گھروں سے در بدر کیوں ہیں؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کون سی علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں اس ملک کو جہنم بنانے کے جرم میں ملوث ہیں؟ خانہ جنگی کے ان 2 سالوں میں کتنے انسان لقمہ اجل بن گئے، کتنے خاندان اجڑ گئے اور کتنے ہی لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ تہلکہ خیز انکشافات کی ایک طویل داستان ہے جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سٹوری ٹائم۔ 853 کلومیٹر کی طویل ترین ساحلی پٹی اور مصر، لیبیا اور ایتھوپیا وغیرہ کے ساتھ اپنی سرحدیں رکھنے والا یہ براعظم افریقہ کا تیسرا بڑا ملک سوڈان ہے۔ یہ وہ ملک ہے جسے طویل عرصے تک اس کے زرعی وسائل کی بنیاد پر فوڈ باسکٹ آف افریقہ بھی کہا جاتا رہا ہے، جس کی زمینوں پر دنیا کا عظیم جزیرہ پروجیکٹ قائم کیا گیا تھا۔ قدرتی وسائل سے مالا مال، سونے کے ذخائر کے لیے دنیا کا تیسرا بڑا ملک اور مویشیوں کے لیے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہوا کرتا تھا۔ بحیرہ احمر کے کنارے پر اس کا اسٹریٹجک محل وقوع اسے بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک اہم مرکز بنا کر اس کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ جہاں تک بات سوڈان میں سول وار یعنی خانہ جنگی کی ہے، تو اس کا آغاز اپریل 2023 میں ہوا، جب ملک کی 2 طاقتور عسکری قوتیں آپس میں برسر پیکار ہو گئیں۔ ایک طرف سوڈانی فوج یعنی SAF، جن کی قیادت آرمی چیف جنرل عبد الفتاح البرہان کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ریپڈ سپورٹ فورس یعنی RSF، جس کے سربراہ محمد حمدان دقلو حمیدتی ہیں۔ یہ دراصل اقتدار کی تقسیم، فوجی بالادستی اور ملک کے سیاسی و اقتصادی وسائل پر قبضے کی جنگ ہے۔ سوڈان کی خانہ جنگی نے دنیا کے سب سے بڑے اور تیز ترین انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ اس تنازع کے نتیجے میں اسپتال تباہ ہو گئے ہیں، خوراک کی ترسیل بند ہو چکی ہے اور پینے کا پانی نایاب ہو چکا ہے۔ نقصانات کی تعداد آئے دن مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اپریل 2023 سے اب تک کم از کم 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن سب سے بڑا المیہ نقل مکانی ہے، در بدری ہے، جہاں 12 ملین سے زائد افراد یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد فرار ہو چکے ہیں یا اندرونی طور پر بے گھر ہو کر چھپنے پر اور روپوش ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں، جن میں سے 8.7 ملین صرف گزشتہ 20 مہینوں میں بے گھر ہوئے ہیں۔ ملک کی نصف سے زائد آبادی شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کر رہی ہے۔ قحط کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ دسمبر 2024 تک کم از کم 5 علاقوں میں قحط کی تصدیق ہو چکی تھی اور 5 مزید علاقوں میں قحط کا شدید خطرہ ہے۔ جی ہاں، افریقہ کا اناج گھر، فوڈ باسکٹ آف افریقہ کہلانے والا ملک اس وقت اس بدترین قحط کا شکار ہے کہ اس کے باشندوں کو کھانے کے لیے دانہ اور پینے کے لیے پانی کی بوند بوند کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے۔ لیکن دنیا خاموش ہے، کیونکہ دنیا کے اپنے اپنے مفادات اس خانہ جنگی کے ساتھ
मुंसलिक हैं। खुराक, आमदनी और कानूनी खिदमात की कमी के बायस बेघर अफराद को शदीद ख़तरात का सामना है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक अहम ख़तरात में इंसानी स्मगलिंग, जिनसी तशद्दुद, बच्चों की जबरी शादियाँ, जबरी भर्ती और बच्चों की मशक्क़तें शामिल हैं। अल-जनीना, नयाला और अल-फाशिर जैसे शहर इंसानी अलमिये का मंजर पेश कर रहे हैं। हैज़ा, मलेरिया और डेंगू जैसे अमराज बड़े पैमाने पर फैल चुके हैं। ये बहरान सिर्फ भूख का नहीं है, बल्कि मुकम्मल हुकूमती निज़ाम और माशरती साख्त के टूट जाने का बहरान है, जिसके दूर रस असरात न जाने आइंदा कितनी ही नस्लों पर पड़ेंगे। यहाँ RSF का पस मंज़र भी जानना ज़रूरी है। ये एक कबायली मुसल्ला जंगजुओं का टोला था, जिसे जंजुएद कहा जाता था। 2019 में उमर अल बशीर ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इसे नीम फौजी हैसियत दी और हमीदती को जनरल बना डाला। इस तरह इसे नीम सरकारी रैपिड फोर्स का नाम मिला। सन 2019 में उमर अल बशीर की हुकूमत का खात्मा हुआ, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये RSF बनाई गई थी। उसी हुकूमत का खात्मा हुआ, जिसके बाद फ़ौजी और सिविलियन रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक शरीक हुकूमत कायम हुई, जिसमें अब्दुल्ला हमदूक वज़ीर आज़म थे और जनरल बुरहान, जो इस वक्त भी सूडान के आर्मी चीफ हैं, और SAF, जो कि RSF के मद्दे मुकाबिल है, उसके सरबराह हैं। इस दौर में मुल्क ने आलमी सतह पर बिलखुसूस अमरीका और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल तो किए, लेकिन अक्टूबर 2021 में जनरल बुरहान ने अचानक बगावत करते हुए अपने साथ शरीक सिविलियन गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और मुल्क पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ से SAF यानी स्वीडन आर्म फोर्सेस और RSF के दरमियान चपकले शुरू हुई। RSF के मुस्तकिल फ़ौज में इंज़िमाम के मामले पर बढ़ती हुई कशमकश बिलाखिर अप्रैल 2023 में खुली जंग में तब्दील हो गई, जिसके नतीजे में दारुल हुकूमत खुर्तूम तबाह हो गया। इस चपकलश का आगाज़ अगरचे खुर्तूम में हुआ, लेकिन ये जल्द ही मगरबी खित्ते दारफोर में नस्ली रंग में तब्दील हो गई। दारफोर में RSF मलेशिया ने आम शहरियों के कत्लेआम, लूट मार और देहात और गांव जलाने जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। और ये जराइम सिर्फ मारने और जलाने तक नहीं थे, बल्कि बहुत सारी खवातीन की उनके मर्दों के सामने इस्मत दरियाँ की गई। यहाँ तक कि जिन खवातीन और बच्चियों की इस्मत तार तार की गई, उनमें नाबालिग और छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी शामिल थीं। इस सूरत हाल ने अल-फाशिर जैसे शहरों को अपनी लपेट में ले लिया और नतीजतन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। दारफोर का शहर अल-फाशिर SAF का आखिरी बड़ा गढ़ था और यहाँ 6 लाख से ज़ायद बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। RSF ने 500 दिनों से ज़ायद अरसे तक इस शहर का मुहासरा किया, जहां फाका कशी और बिला इम्तियाज बमबारी की हिकमत अमली इस्तेमाल की गई। अक्टूबर 2025 में RSF ने SAF के मरकजी हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया। इस फौजी फतह के नतीजे में कम अज कम 1500 शहरी हलाक हुए, जिनमें एक अस्पताल के 100 निहत्ते मरीज भी शामिल थे, जिन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस फतह के जरिए पूरे दारफोर पर RSF का कंट्रोल मजबूत हो चुका है और जनूबी दारफोर के शहर नयाला से अब तक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जा रही है। ये गोया RSF की तरफ से मगरबी सूडान पर खुद मुख्तारी का अमली ऐलान है। इसके मुकाबले में SAF की क़यादत में रियासत अब बहीरा अहमर के साहिल और दरियाए नील के मरकज़ तक महदूद होकर रह गई है, जो पोर्ट सूडान से हुक्मरानी कर रही है। माहिरीन इस सूरत हाल को सूडान की डिफेक्टो तकसीम करार दे रहे हैं, जिसका नतीजा लीबिया जैसी डिफेक्टिव सूरत हाल की तरफ जा सकता है, जहां मुल्क 2 या 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। याद रहे कि सूडान इससे पहले सन 2011 में भी जनूबी और शुमाली सूडान की सूरत में तकसीम हो चुका था, तो गोया अब तकसीम दर तकसीम का शिकार है। सूडान जुग्राफियाई तौर पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप की तिजारत के लिए इंतहाई अहम हैसियत रखता है।
इसे एक अहम सिक्योरिटी और तिजारती चौक पॉइंट कहा जा सकता है, जिसकी वजह से सूडान आलमी ताकतों के खेल का मैदान भी बना हुआ है। इस महल वकूअ की वजह से इलाकाई और आलमी ताकतों ने मुदाखलत की ताकि वो इस अहम आबी गुज़रगाह की निगरानी और इसके ज़रिए अपने इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। अब वो ताकतें यहाँ किस तरह से अपना खेल खेल रही हैं, आइए ज़रा उसकी एक तस्वीर और झलक दिखाते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात सूडान में सोने की कानों, ज़री ज़मीनों और बहरी बंदरगाहों में गहरी दिलचस्पी रखता है। मुत्तहिदा अरब इमारात खुफिया तौर पर RSF की माली और फौजी मदद कर रहा है, जो कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स और बहुत सारे शवाहिद से साबित भी होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की दस्तावेज़ात ने यह ज़ाहिर किया है कि RSF के ठिकानों से बरतानवी साख्ता इंजन और दीगर फ़ौजी साजो सामान बरामद हुआ है, और ये वही साजो सामान है जो बरतानिया ने मुत्तहिदा अरब इमारात को फ़रोख्त किया था। सूडानी हुकूमत ने इन शवाहिद की बुनियाद पर UAE के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में मुकदमा भी दायर किया है, और जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, इससे महज एक दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास के दौरान सूडान के नुमाइंदे और UAE के नुमाइंदे के दरमियान इन्हीं इल्ज़ामात को लेकर बहुत ही सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। عندما كان السودان يدعم الدول وحركات التحرر لم تكن دولة الإمارات مذكورة في التاريخ ولا في خارطة العالم، ولذلك نحن نعلم شرها ونحن الذين أسسنا مجدها۔ अगरचे इमाराती हुकूमत ने फ़िलहाल और मुसलसल इस इल्ज़ाम की तरदीद की है, लेकिन ये हकीकत ज़्यादा देर तक छुपी तो नहीं रह सकेगी। RSF को मिलने वाली माली और फौजी मदद ही इस जंग को जारी रखने का सबसे बड़ा ज़रिया है, क्योंकि वो तो एक मुसल्लह जंगजू गिरोह हैं। उनके पास तो हुकूमत और निज़ाम चलाने का और कोई ज़रिया नहीं है सिवाय इसके कि उनको बैरूनी इमदाद हासिल हो। अहम बात यह है कि बरतानवी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात के बाद भी मुत्तहिदा अरब इमारात को उसी नौइयत के फ़ौजी साजो सामान की बरामदात की मंजूरी देना जारी रखा हुआ है, जिससे ये भी वाज़ेह होता है कि मगरबी तिजारती मफादात इंसानी बहरान पर काबू पाने की अखलाकी ज़िम्मेदारी पर गालिब आ चुके हैं। दूसरी जानिब मिस्र सूडानी फ़ौज यानी SAF की पुश्तपनाही कर रहा है। मिस्र को खौफ है कि अगर नीम फ़ौजी गिरोह कामयाब हो गए तो उसके लिए दरियाए नील के पानी की तकसीम और अपनी शुमाली सरहद पर इस्तेहकाम ख़तरे में पड़ जाएगा। ताहम मिस्र का किरदार सिर्फ सियासी हिमायत तक महदूद नहीं है। मिस्र सूडानी सोने की स्मगलिंग के अहम रास्तों में से एक रास्ता भी बन चुका है, और उसने अपने मुआशी फ़वाइद के लिए सोने पर दरामदी ड्यूटी भी हटा दी है। यूं मिस्र की पॉलिसी दोहरे मफादात पर मबनी है। सियासी तौर पर तो वो SAF यानी सूडानी फ़ोर्स को मजबूत देखना चाहता है, लेकिन मुआशी तौर पर सूडान से स्मगल शुदा सोने से फ़ायदा भी उठा रहा है, यानी RSF को सोना स्मगल करने का रास्ता भी दे रहा है, और वो भी ड्यूटी फ्री। फरवरी 2025 में सूडानी वज़ीर ख़ारजा अली यूसुफ अहमद शरीफ ने पोर्ट सूडान में रूस के पहले अफ्रीकी बहरी अड्डे के क़याम के मुआहदे की बाज़ाब्ता तस्दीक की। रूस का मकसद वाज़ेह है कि बहीरा अहमर के साहिल पर एक मुस्तकिल बहरी अड्डा कायम किया जाए। ये अड्डा शाम के अड्डे और तुर्की के आबनाए के बंद होने के बाद रूस के लिए मज़ीद अहम हो गया है, क्योंकि ये अड्डा उसे बहीरा अहमर में मुस्तकिल मौजूदगी और अफ्रीका और बहरे हिंद तक रसाई फराहम करेगा। SAF ने मगरिब की मुमकिना हिमायत हासिल करने में नाकामी के बाद रूस को ये स्ट्रेटेजिक रियायत दी है। अब अमेरिका का मफाद ये है कि सूडान किसी भी सूरत में रूस या फिर चीन के करीब ना जाए, क्योंकि ये जोग्राफियाई पोजीशन आलमी ताकतों के तवाज़ुन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसराइल
जिसके साथ उमर अल बशीर के बाद ताल्लुकात का आगाज तो हुआ और इसराइल सूडान को मशरकी अफ्रीका में अपना इत्तेहादी भी बनाना चाहता है ताकि बहीरा अहमर में ईरानी असरो रसूख को महदूद किया जा सके। इसराइली इंटेलिजेंस ने माजी में RSF के कायदीन से बराह रास्त राब्ते किए और काहिरा के रास्ते दोनों फरीकों पर असरअंदाज होने की मुतअद्दिद बार कोशिशें भी की। इस पूरी सूरत हाल से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी दुनिया की कितनी बड़ी नौइयत की जंगों के लिए मैदाने का रज़ार सूडान को बनाया गया है। कैसे ये मुल्क अपने महल वकू, जोग्राफिए और वसाइल की वजह से बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के लिए अहमियत का हामिल है और इसी अहमियत के पेश नज़र यहाँ आग और खून का बाजार गर्म है, जिसे रोकने की कोई सूरत फ़िलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही और रोकना तो दरकिनार बल्कि आलमी मीडिया और पूरी दुनिया इस पर जिस मुजरिमाना खामोशी का शिकार है वो भी इंतहाई अफसोस का मकाम है। और उनकी खामोशी क्यों ना हो, क्योंकि जिन पर ये जंग रोकने की जिम्मेदारी है वो तो खुद अपने मफादात के लिए इस जंग के अलाव को मजीद दहकाते चले जा रहे हैं। रियासती इदारों के खात्मे के साथ ही SAF और RSF दोनों ने जंग जारी रखने के लिए तेल, मवेशियों और सबसे अहम सोने की पैदावार और गैर रस्मी तिजारत पर इन्हिसार शुरू कर दिया था। मईशत के ये ज़राए दरअसल इस तनाज़े का अहम तरीन ईंधन है, यानी यूँ कहिए कि सूडान के वो तमाम के तमाम कुदरती वसाइल जो सूडान की खूबसूरती थे अब सूडान को जलाने के लिए सबसे अहम ईंधन का काम दे रहे हैं। अगरचे रस्मी मईशत ख़त्म हो चुकी है, दोनों फरीक जंग के माली तकाज़ों को पूरा करने के लिए अब अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से निकलने वाले कुदरती वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आवाम भूखी मर रही है। RSF के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से निकलने वाला सोना एक वसी बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के ज़रिए मुबैना तौर पर UAE पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ SAF के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से निकलने वाला सोना मिस्र और फिर वो भी मुबैना तौर पर UAE की तरफ मुंतकिल होता है, जिससे SAF को भी माली मदद मिलती है। मिस्र ने मई 2023 में सोने पर दरामदी ड्यूटी हटाकर स्मगलिंग को मज़ीद आसान बना दिया है और ये स्मगलिंग जंग को जारी रखने का वाहिद जरिया बनी हुई है। इलाकाई ताकतों की जानिब से जंगी मईशत में बराह रास्त शमूलियत के ठोस शवाहिद के बावजूद आलमी बिरादरी का रद्द अमल कमज़ोर रहा है। अगरचे G7 ममालिक तनाज़ात से हासिल होने वाले सोने पर पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने मफादात उनके आड़े आ रहे हैं, इसलिए तमाम ममालिक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जब तक आलमी ताकतें इन मुनाफा बख्श मालियाती रास्तों खुसूसन दुबई में सोने की हैंडलिंग को हदफ नहीं बनाते, ये जंग माली तौर पर पायदार रहेगी और अमन की तमाम तर कोशिशें सिर्फ कागज़ और टेबल पर रहेंगी। अब सवाल ये है कि इस सारी खूनरेज़ी, बर्बरियत, खाना जंगी और मफादात की दौड़ में हल क्या होगा? तो नाज़रीन मोहतरम, सूडान में पायदार अमन की कोशिशें न सिर्फ दाखिली सतह पर बल्कि सबसे ज़्यादा इलाकाई ताकतों के माबैन इत्तिफ़ाक़े राय पर मुनहसर हैं, जो दोनों फरीक यानी SAF और RSF के अहम पुश्तपना है। सूडान के मसले का कोई फ़ौजी हल तो नहीं है, ये हम सब देख चुके हैं, और तनाज़े का ख़ात्मा सिर्फ़ और सिर्फ जामे सियासी अमल के ज़रिए ही मुमकिन नज़र आता है। सूडान में क़याम अमन के लिए एक अहम पेशरफ सितंबर 2025 में उस वक़्त हुई जब अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक मुश्तरका रोड मैप पर इत्तिफ़ाक़ किया। इस रोड मैप के अहम उसूल और निकात दर्ज झैल हैं। इस रोड मैप में कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इस तनाज़े का कोई फ़ौजी हल काबिल अमल नहीं है और मौजूदा सूरत हाल नाकाबिल कबूल मसाइब और इलाकाई ख़तरात का बायस बन रही है। सूडान के मुस्तकबिल का फ़ैसला सिर्फ सूडानी अवाम को एक शफ़ाफ और अबूरी अमल के ज़रिए से करना है जिस पर किसी भी फरीक का कंट्रोल ना हो।
ये भी कहा गया कि एक उबूरी हुकूमत कायम की जाए जिसका मकसद 9 माह के अंदर एक आज़ाद सिविलियन क़यादत में हुकूमत कायम करना है, जिसे वसी पैमाने पर कानूनी और एहतसाबी हैसियत हासिल होगी। इस मंसूबे में 3 माह की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आरजी जंगबंदी की तजवीज़ भी दी गई, जिसके फ़ौरन बाद मुस्तकिल फायरबंदी की तरफ बढ़ा जाएगा। ये रोड मैप इसलिए अहम है क्योंकि इसमें मिस्र और यूएई, जो कि एसएएफ और आरएसएफ के मुबैना तौर पर कलीदी पुश्तपनाह हैं, पहली बार एक मुश्तरका एंडिंग गेम पर मुत्तफिक नज़र आते हैं। हालांकि इनके दरमियान सूडान के हवाले से सख्त इख्तिलाफात भी मौजूद थे। सूडान की जंग को जारी रखने का सबसे बड़ा जरिया सोने की तिजारत है। इस जंग को ख़त्म करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर दर्ज झैल इक़दामात ज़रूरी मालूम होते हैं। सबसे पहले तो दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी ताकतों जैसे कि G7 ममालिक को चाहिए कि वो सूडानी जंगी फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म पाबंदियाँ लगाएं। इन पाबंदियों में फ़ौजी और हुकूमती एहलकारों, मुसल्लह गिरोहों के रहनुमाओं और सोने की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस कंपनियों को निशाना बनाना चाहिए। चूंकि मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात मुबैना तौर पर दोनों मुतहारिब फरीकैन पर काफ़ी असर और रसूख रखते हैं, इसलिए उन्हें सूडान में अपने मुतज़ाद इलाकाई पॉलिसियों पर मुश्तरका बुनियाद तलाश करने की तरगीब दी जानी चाहिए। उनके सियासी, फ़ौजी और इक़्तिसादी इन्हिसार की वजह से ये बैरूनी फरीकैन एसएएफ और आरएसएफ को पायदार फायरबंदी पर राज़ी करने की मुनफरिद पोजीशन में नज़र आते हैं। अल-फाशिर के सुकूत के बाद सूडान की तकसीम का ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है। अगरचे ऊपर जिक्र किए गए रोड मैप की सूरत में उम्मीद की एक किरण तो मौजूद है, लेकिन जब तक मैदान जंग में फरीकैन का मालियाती नेटवर्क और उनके इलाकाई पुश्तपनाहों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी नहीं हो जाती, ये जंग माली तौर पर पायदार तो रहेगी। माहिरीन के मुताबिक सूडान का मुस्तकबिल 2 मनफी मंजरनामों में से एक हो सकता है। पहला, टुकड़े टुकड़े हो जाना, जहां मुल्क छोटे छोटे मकामी गिरोहों के तनाज़ात में तकसीम हो जाएगा। दूसरा और ज़्यादा ख़तरनाक, बाज़ाब्ता तकसीम, जिसमें आरएसएफ मगरबी और जनूबी सूडान को कंट्रोल करेगा और एसएएफ मशरकी पट्टी पर हुक्मरानी करेगा, और ये दोनों सूरतें ही इस मुल्क के लिए निहायत बेहद खतरनाक है। सूडान की बका खतरे में है। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ फौजी इनखिला ही नहीं, बल्कि सोने की जंग को रोकने, बैरूनी मुदाखलत को महदूद करने और सूडानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का खुद फैसला करने का मौका फराहम करने की ज़रूरत है। और ये हो सकता है अगर बैनुल-अक़वामी ताकतें अपना किरदार अदा करें, वगरना लोग मरते रहेंगे। 1.5 लाख से ज़ायद लोग अब भी तो मर चुके हैं। हज़ारों लाखों बेटियां अब भी तो अपनी इज्जतें पामाल करवा चुकी हैं। सैकड़ों हज़ारों मासूम बच्चे भी तो अपनी बलि दे चुके हैं। क्या बदला है? कुछ भी नहीं। इन्हें सोना मिलता रहेगा और दर पर्दा ये कुछ करने के बावजूद ज़ाहिर की ज़ुबान से इंसानियत और इंसानी हुकूक के नारे लगाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह ताला इस दुनिया में हर मज़लूम का हामी और नासिर हो और उम्मत मुस्लिमा के हालात पर रहम फरमाए, इन्हें आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद नसीब फरमाए और अपने दुनियावी मफादात से आगे बढ़कर इंसानियत के मफादात में कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।